مل کر اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی پنڈال میں آ جائیں پیچھے، اور آپ ساتھی جو میرے دائیں طرف جو ہیں آپ بھی آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ یہ میلاد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں اس پروگرام کا انعقاد عمران خان صاحب نے کیا ہے، تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے، سب نے مل کر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ لاہور سے تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب، آپ تلاوت یہاں پر پڑھیں گے، اور ترجمے کے لیے میں درخواست کروں گا پیر نور الحق قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیے ترجمے کے لیے۔ آئیے قاری سبیل صاحب تلاوت قرآن حکیم کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ احزاب کے ان آیات بینات کا ترجمہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور صبح و شام اپنے رب کی پاکی یعنی تسبیح بیان کرو۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے
جو تم پر رحمت بیچتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے، وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن ایمان والے اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ملتے وقت ابتدائی کلمہ سلام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام ہے۔ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور یوں سمجھے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم محمد عربی کے دربار میں حاضر ہیں، اس ادب، اس احترام اور اس جذبے سے اس خطابات کو سنیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ یہ نور اللہ قادری صاحب۔ 12 ربیع الاول کا مبارک دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت العالمین آئے۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین بنے۔ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ بنے۔ اس سال بھی پاکستان بھر میں جس طرح سے، جس انداز میں عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں اس کی مرکزی تقریب کا انعقاد جناب عمران خان صاحب نے یہاں اسلام آباد میں کیا، لیکن سوال ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کیا حاصل کر کے ہم اپنے گھروں کو جائیں گے؟ ہم سے مراد میری طرح کے دیگر نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے گی کہ کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے، کیسے اپنی زندگیوں کے اندر، کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی لائیں گے، اور کس طرح سے ہم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ان کی سیرت ہے اس پر عمل پیرا ہو کر کس طرح سے ہماری زندگی بدلے گی۔ آج یہ مرکزی اس کا عنوان ہے اور اسی پہ بات چیت ہوگی۔ میں آگے بڑھوں گا، نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے پاکستان کے ایک ایسے نعت خواں جنہیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے نمبر 1 نعت خواں رہے، پوری دنیا میں انہیں پذیرائی ملی، اور ان کا نام آپ سب جانتے ہیں سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ ان کے یہ شاگرد ہیں جو تشریف لائے ہیں، محمد ارشد سہروردی صاحب، اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ جناب فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بار تمام احباب سے گزارش ہے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس بابرکت اور باسعادت محفل میں جہاں تک میری آواز آپ سماعت کر رہے ہیں، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
سلام علیکہ یا حبیب اللہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر دوں اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر دوں اے حلیمہ سرور کونین پر کر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی رکھ دیا سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر مرے کونوں مقا کی سر مرے کونوں مقا کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی اور آج محفل میں نیازی نعت جو یا رسول اللہ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی ہمیں فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اور ایک اور موقع پہ علامہ اقبال نے
ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसके हवाले से एक शेर कहा है कि हम बातें तो करते हैं लेकिन अमल करने से जो है वो मकसद पूरा होता है, हयात जिंदगी का मकसद। तो ये शेर मुख्तसर सा शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम में। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा नजम शराज साहब को। नजम शराज साहब ने ये जो कवाली है खास तौर पर आज के मिलाद के लिए तैयार की है। तो नजम भाई आप तशरीफ लाइए और ये कवाली जी नजम शराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब, हुफ़ाज़, शयूख, उलमाए दीन, फैमिलीज़, नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये कवाली को बचपन से इश्क किया है, लेकिन कुरान को थोड़ा सा समझने के बाद समझ में आई कि इसका मकसद क्या था, कि जितनी भी नेमतें, जितनी भी हिकमत, जितनी भी रोशनी हमें मिली है अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मिली है। और क़यामत तक यही सिलसिला रहेगा कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सामने रखना है। सो ये कुछ अशार इस कवाली के। सब भाई बहनों से मैं चाहूँगा तमाम कि शरीक हो जाएं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। शहे मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंजाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हूँ, मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। है मुखालिफ ज़माना के धर जाए हम, हालतें बेकसी किसको दिखलाए हम। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो
झोली हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए सख्त मुश्किल में है हमसे हारे हुए या नबी कुछ खुदारा हमें भीग दो या नबी कुछ खुदारा हमें भीग दो घर पे आए हैं हुए भर तो झोली मेरी सरकारे मदीना भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली काश पूर्णम तैयारे नबी में जीत जी हो बुलावा किसी दिन हाँ जीत जी हो बुलावा किसी दिन काश पूर्णम तैयारे नबी में जीत जी हो बुलावा किसी दिन हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं हम करूण के रोजे की जाली हाल गम मुस्तफा को सुनाऊं हम करूण के रोजे की जाली भर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली ऐ इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल ऐ इश्क मुझे कभी नींद ऐसी सुला जाना। मैं अब दरखास्त करूंगा जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और आपसे बातचीत करें। पीर नूरुल हक कादरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिका व नबिय्यिका व हबीबिकल उम्मी वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हो न ये फूल तो बुलबुल के तरन्नुम भी न हो। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो तुम। जनाब हमारे कायद बल्कि उम्मत मुस्लिमा के कायद इमरान खान और यहाँ पर तशरीफ रखने वाले तमाम आशिक़ान रसूल मेरे बहनों और भाइयों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप सबको इस जश्न ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद देता हूं और फिर अपने कायद इमरान खान का और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना फरीजा समझते हुए
اس قوم کی اور اس امت کی صحیح ڈائریکشن میں آپ لا رہے ہیں اور کدھر لا رہے ہیں؟ محمد عربی کے دروازے پر لا رہے ہیں۔ آج کا دن 12 ربیع الاول کا دن تاریخ عالم کا وہ دن ہے کہ اگر یہ دن نہ ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، نہ تو رمضان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ حج، نہ نماز، نہ سجدے، نہ مسجد، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے اس 12 ربیع الاول کی صبح اور اس دن کی وجہ سے اور توفیل و برکت سے ملا ہے۔ میں صرف تمہیدی کلمات پر کہوں گا، تقریر خان صاحب کریں گے اور انشاءاللہ اس قوم کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ الم نشرح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی آپ کا ذکر میں نے بلند کر دیا ہے۔ جبریل آئے اور حضور کو کہا کہ اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نبی تمہارے ذکر کو میں نے ایسے بلند کیا ہے، کلما ذکرت ذکرت معیا، اے نبی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تمہارا ذکر بھی ہوگا، نماز میں ہو، اذان میں ہو، اقامت میں ہو، جہاں میرے ذکر کے زمزمے بلند ہوں گے میرے حبیب آپ کا ذکر بھی وہاں پہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص، جو انسان، میں مسلمان نہیں کہوں گا، جو انسان اللہ کے حبیب اور ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بلند مقام دے گا۔ اور یہ کس کو پتا تھا میرے رب ذوالجلال کے علاوہ کہ وہ قافلہ جو حضور کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ 5 لوگوں کا یہ قافلہ آگے بڑھ کر دنیا بھر میں میرے نبی کا اور میرے حبیب کے چرچے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، تمام بنی نوع انسانیت کا سردار ہوں، لیکن یہ میں فخر کی طور پر نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کی طور پر کہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا اول من ينشق عنه الارض، میں وہ ہوں جس سے سب سے پہلے زمین سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ فرماتے ہیں ولا فخر، یہ میں شکر کے طور پر کہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں انا اول شافع و اول مشفع، میں وہ ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور جو شفاعت کرے گا۔ اور جب حضور حشر کے میدان شفاعت کریں گے تو اللہ کے سامنے اپنا سر نیاز زمین پر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ حکم کرے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد، اے میرے حبیب، اپنا سر اٹھا، اپنا سجدہ ختم کر، سل توتا، تو مانگ، جو کچھ مانگتا ہے میں دے دوں گا، وشفا تو شفا، اور آپ شفاعت کر، جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے میں آپ کے شفاعت کو قبول کروں گا۔ میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُفْتَحُ الْجَنَّةُ بِيَدَيَّ، اور جنت کے دروازے میرے ہاتھ پہ کھلے جائیں گے۔
वला फ़ख्रा, फरमाते कि मैं फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता, सिर्फ शुक्र की तौर पर कहता हूँ। मैं आखिरी एक दो बातें, और वो ये कि हुजूर ने इंसानियत को वक़ार बख्शी, इंसानियत को मकाम दिलाया। वो माहौल जहाँ बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, और कुरान में अल्लाह ताला कहता है व इज़ल मऊदतु सुइलत, अल्लाह ताला फरमाता है को जो ज़माने जाहिलियत में जिंदा दरगोर की जाते थे, मैं उनसे उठा के पूछूंगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। आप तो अभी, आपने गुफ्तगू भी शुरू नहीं की थी, आपने तो अभी चलना फिरना भी शुरू नहीं किया था, किस जुर्म की सजा में आपको कत्ल किया गया। लेकिन मेरे नबी जब आए, ये तीरगियां खत्म हुई, और औरत को जो इज्जत रसूलुल्लाह ने दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती थी, हुजूर अपने अहले खाना को, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को फरमाते थे कि मैं इस अपनी बच्ची की कदमों की आहट को हो जाते थे, दरवाजे पर इस्तकबाल करते थे, फिर देते, हजरत सईदा के पेशानी को बोसा देते थे, फिर अपना जो उसका नशिस्त होता था उसी नशिस्त पे हजरत सईदा फातिमा को बिठाते थे। कोई वालिद अपनी गिरबानों में देखे, कोई वालिद, कोई शख्स अपने बेटी को इतना इज्जत दे सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बातें हैं जो हुजूर ने फरमाई, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए आला अखलाक की मैं तालीम करूं और उसको तमाम और कमाल तक पहुंचाऊं गुलामों को। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले, हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले, तमाम अहले मक्का मुझे नफरत से देखते थे। एक हाशिमी जवान था, जब मेरा उसके साथ आमना सामना होता था, वो मुस्कुराते थे, मुझे गले लगाते थे, मुझसे मोहब्बत की बात करते थे। वो कौन था? वो मोहम्मद अरबी था। और किसी गुलाम मेरी लूंडी, आपने कहा नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई लूंडी नहीं, हम सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह के बंदिया है। वो बिलाल हबशी जो गुलाम था, हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े मजमे में खड़े होकर लोगों को उठाकर कहा, क़ूमू लिसय्यिदिकुम, ये हमारा सरदार है, इसके एहतराम में आप सब लोग खड़े हो जाए। ये मकाम इंसानियत की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाई। खान साहब, आपने जिस तरह आज की महफिल को अपने दिललगी के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत के साथ सबको जमा किया, ये आपने ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र और मोहब्बत में क्या है, और आपको जो अल्लाह ताला ने कबूलियत, महबूबियत दी है, ये उसकी देन है, इसमें किसी का काम नहीं है। और वो इस वजह से कि आप हुजूर की कदमों और उनकी जूतों के गुलाम बन गए हैं, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये महबूबियत और कबूलियत दी। और मुझे लगता है कि अहमद नदीम कासिमी ने एक नातिया शेर में जब उन्होंने कहा था, आपका तस्वर जब मुझे आता है, मुझे बड़ा लगता है कि उस वक्त के लिए है कि कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शिदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पूरे कद से जो कड़ा हूं तो ये उनका है करम, मुझको झुकने नहीं देता है
सहारा तेरा वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा, खान साहब की हुक्म पर जो हुज्जतुल विदा का खुतबा है उसका एक मुख्तसर इक़्तिबास 2 मिनट का वो आप सुने, यहाँ पे आपको वीडियो पे आ जाएगा। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कि तुमसे यहां मुलाकात ना हो सके, जो तुम्हें गरीब है उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, कि सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। जो मौजूद है वो उन्हें बता दे जो मौजूद नहीं। तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसे अल्लाह का खौफ है। मैं जो कुछ कहूं उसे गौर से सुनो। अय्याम जाहिलियत के मकतूलीन का कसास और दियत दोनों खत्म की जाती है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों में रंग, नस्ल और कबीले का कोई इम्तियाज नहीं। कोई मुसलमान किसी दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ नहीं करेगा, वरना ये एक दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। लोगों, गौर से सुनो, जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमील दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा ना करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला खुद और अल्लाह ताला के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। आज जब इमरान खान साहब की तकरीर खत्म होगी, उसके बाद हम सब मिलके दुआ करेंगे और दुआ के बाद हम सब मिलके सलाम पेश करेंगे हजूर अक़दस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातिम नबीयीन नबी व आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस वक्त मैं नातिया एक कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूं जनाब अताउल्लाह खान ईसा खेलवी साहब को। काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम मेरे महबूब, मेरे लीडर इमरान खान साहिब, बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये खुशकिस्मती कि खान साहब ने मुझे इस काबिल समझा और इस खूबसूरत महफिल में हाजिर होने की सादत बख्शी। ये तेरा चेहरा, ये तेरी जुल्फें, ये सुबह आका, ये शाम आका, दरूद आका, सलाम आका, सलाम खैरुल अनाम आका। ये तेरा चेहरा मेरा वो पहला प्याम लेकर सबा न जाने किधर गई है।
میرا وہ پہلا پیام لے کر صبا نہ جانے کدھر گئی ہے، لکھا ہے دستے دعا پہ اشکوں سے ایک تازہ پیام آقا سلام آقا۔ ہوئی ہے جب سے نگاہ مجھ پر، عطا ہوئی ہے وہ شان مجھ کو، ہوئی ہے جب سے نگاہ مجھ پر، عطا ہوئی ہے وہ شان مجھ کو، ہوا ہے سارے جہاں پہ واجب فقیر کا احترام آقا، درود آقا، سلام آقا، سلام خیر الانام آقا، یہ تیرا چہرہ میری دعا کے نہیں ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا اثر کا دامن، میری دعا کے نہیں ہاتھوں سے چھٹ گیا تھا اثر کا دامن، بڑھی میری سمت خود ہی رحمت، لیا ہے جب تیرا نام آقا سلام آقا۔ نگاہ نیچی زبان عاجز ہے اپنی ندامت، نگاہ نیچی زبان عاجز ہے اپنے اعمال پر ندامت، میں نہیں ہوں لیکن وہ میرے حصے کا جام آقا سلام آقا، آقا سلام خیر الانام آقا، یہ تیرا چہرہ نعت رسول مقبول کے کچھ اشعار جو ہے تو حبیب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن وہ پاکستان اور ہماری قوم کے نام لکھے گئے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جس کی امید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کی عزت کم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ اور اس کے نبی آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پوری دنیا کی طاقت بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے۔ اسی کے بارے میں یہ نعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا
के निशान चूम रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना, देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, मुसलमान की हालत। तफरको तनाज़ों में बटा देख रहा हूँ, सरकार के निशान चूम रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना, तन्हा नहीं करता तू बंदों को कभी भी, तन्हा नहीं करता तू बंदों को कभी भी, बंदों को कभी भी। कुरान के वादों में लिखा देख रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना, जैसे भी गुनाहगार हैं उम्मत है नबी की, जैसे भी गुनाहगार हैं उम्मत है नबी की, उम्मत नबी की। सरकार की रहमत की नजर देख रहा हूँ, सरकार की रहमत की नजर देख रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना, ऐ काश समझ जाए हम सभी तेरी बात, ऐ काश समझ जाए हम सभी तेरी बात, हम सभी तेरी बात। पहाड़ों को भी सजदों में झुका देख रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना, वादा शफाते रसूल का वादा किया था तूने
शफात रसूल का, शफात रसूल का, मुसलमान को इसी आस में खड़ा देख रहा हूँ, मुसलमान को इसी आस में खड़ा देख रहा हूँ, खादिम हूँ उस दर का, अकेला ना समझना मुझे, अकेला ना समझना। अब से 5-6 मिनट के बाद इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे और अल्लामा इकबाल का एक शेर बचपन से हम सुनते आए हैं लेकिन समझ नहीं थी इसकी, और ये अब एक हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे अभी, और शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मतलब ये कि अगर हम आकाए दो जहां रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलना शुरू करें, उनकी बताए हुए तरीके पे चलना शुरू करें, तो अल्लाह कहता है कि ये इस शेर में जो अल्लामा इकबाल ने जिसका बयान किया कि ये जहां फिर क्या चीज है, लोहो कलम, कलम मतलब लिखने की चीज और लोहो मतलब किस्मत, यानी कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के। वो रास्ता क्या था और क्या सफर था, उस पर मबनी एक ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इंतहाई खामोशी से, बाएं तरफ जो लोग हैं आप और दाएं तरफ आप, खामोशी से इसको मुलाहिजा कीजिए और इसके बाद फिर इमरान खान साहब खिताब करेंगे। एक दौर था कि जब अरब कबाइल चारों और तहजीबों के दरमियान होने के बाद जहां इंसान की कोई अहमियत ही न थी, अरब मुआशरा अदल व इंसाफ व अखलाकी अक़दार से कोसों दूर था। जहालत का जमाना, इंतहाई नारवा सलूक किया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, कोई खानदानी निजाम नहीं था, मुख्तलिफ कबीलों में बटे कबाइल एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तारीकी के इस दौर में वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, जिनकी आमद ऐसी पुरनूर रोशनी थी कि जिसके आगे कफ़ार मक्का के जुल्म सितम और नाइंसाफी मांद पड़ गई। हक और सच ऐसा कि दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन कहे बिना ना रह पाए। इस सवाल पजीर माशरे में सदाए हक बुलंद करना आसान न था, और जब हक की आवाज उठी तो मुज़ाहमत भी भरपूर हुई, मसाइब बढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मदीने की जानिब हिजरत फरमाई। मदीना जो आपके इस्तिकबाल के लिए मुंतजर था। शहर मदीना अदल व इंसाफ, भाईचारा, माशरती फलाह और अखलाकी अक़दार की नई तहजीब का महवर बनता गया, जहां इंसानियत जाग उठी और एक इस्लामी माशरे की बुनियाद पड़ी।
जहां तालीम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी ठहरी। एक मिसाली फलाही रियासत जिसमें अक़लियतों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक़ फराहम किए गए, जहां मालिक और गुलाम के दरमियान फ़र्क मिटा दिया गया और इंसानियत को शर्फ हासिल हुआ। वहीं रंग व नस्ल की तफरीक मिटा दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मुआशरा तरतीब दिया जिसने अपने किरदार से दुनिया बदल कर रख डाली। मैदान बदर में सिर्फ 313 पर मुश्तमिल दस्ते ने एक नए आलमी इनकलाब की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत फातिह मक्का आम माफी की रिवायत डालकर अमन का नया रास्ता दिखाया। यह दुनिया का वाहिद इनकलाब था जो इंसान की लाशों पर नहीं बल्कि हुस्ने किरदार, ईमान और सच्चाई के असूलों पर कायम हुआ। बेशक इस्लाम प्यार, अखुवत और अमन का दीन है, ना कि जोर और जबरदस्ती का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब लेकर आए जिसने दुनिया की इमामत की, जिसके आगे दो आलमी कुव्वतें रोमन और पर्शियन एम्पायर ने जज्बा ईमानी वाले के सामने घुटने टेक दिए। यह एक फिक्री और नजरियाती इनकलाब था जिसकी बदौलत मुसलमानों ने सियासी, अस्करी, माशरती और माशी कुव्वत बनकर अक़वाम आलम में इल्म और हिकमत, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी अपनी बरतरी का सिक्का जमाया। इल्म, तहजीब व तमद्दुन सदियों तक अरूज पर रही, फिर नबी से दूरी और अखलाकी पस्ती ने गुलामी को हमारा मुकद्दर बना दिया। और अब जरूर दो जहां रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हूं और अदल व इंसाफ, इंसानियत, सच्चाई, दयानतदारी और नेक किरदार से तर्ज जिंदगी आलमीन अथॉरिटी का कयाम अमल में बुनियादी मकसद और किरदार सबको मुत्तहिद करना और हम आहंगी पैदा करना है। दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखाना है। इस अथॉरिटी में दुनिया के नामवर स्कॉलर्स अपना किरदार अदा करेंगे। स्कूल्स के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसाब का मुसलसल जायजा लेना और रहनुमाई करना, मीडिया के जरिए माशरे की तर्ज जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना, फिक्री और नजरियाती सोच को बेदार करना, इस्लामी तारीख और तालीमात पर मबनी फिल्मों, टेलीविजन ड्रामों के जरिए आगाही, यूनिवर्सिटीज में तहकीक और मुबाहिसा, हुकूमत की रब्बुल आलमीन स्कॉलर्स की मॉनिटरिंग, मेरिट पर मबनी ऑनलाइन सिस्टम, स्पेशल प्रोजेक्ट्स और सूफिया कराम की जिंदगियों और तालीमात से सीख आदिल रास्ता बताना जो सिरातुल मुस्तकीम है, जिसकी बुनियाद और असास सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। माशाल्लाह। अब मैं दावत खिताब दूंगा। आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाते हैं सच्चे आशिक रसूल जनाब इमरान खान साहब, वो आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सब से जो अंदर भी बैठे हैं
और जो बाहर सारे लोग खड़े हैं, बैठ जाओ ताकि वो देख सकें। बैठ जाओ ना, वो देख सके। सब बैठ जाओ, वो देख सके। ओहो, थोड़ा पीछे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूं कि आज बड़ी मेरी बात सुने ताकि ये एक बड़ा मुबारक दिन है। और जो मैं आज आपके सामने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और आज इस दिन के मुतालिक जो बात करूंगा, मैं चाहता हूं जरा बड़ी खामोशी से, और आपने ऐसे मेरी बात सुननी है कि वो आदमी जो अपने बच्चे समझाने की कोशिश करता है, सीधे रास्ते पे लगाने की अपने बच्चों को कोशिश करता है, जिस तरह बाप या माँ बाप, वो ये नहीं कि माँ बाप ने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किए, ये नहीं कि माँ बाप कोई फरिश्ते होते हैं, लेकिन माँ बाप की हमें कि हम अपने बच्चों को से सीख के हम बच्चों को वो सिखाएं ताकि वो गलतियां ना करें जो हमने जिंदगी में की थी। तो मेरी कोशिश ये है कि आज अपनी जिंदगी, जो मैंने 70 साल की जिंदगी गुजारी है, उससे मैं आपको, अपनी कौम को, जिस तरह मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि मैंने जिंदगी से क्या सबक सीखे और मेरी जिंदगी सीरत नबी से बदली कैसे। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, मैं अपने आप को कोई आलम नहीं समझता, मैं अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूं जो हर रोज सीखने की कोशिश, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आशिक रसूल होने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। हमारे दिल में अगर उसकी अल्लाह मोहब्बत डाल देता है तो वो चाहे अनपढ़ हो, चाहे कोई स्कॉलर हो, मैं समझता हूं कि बड़ा खुशकिस्मत इंसान। जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है अगर जब वो अपने नबी से इश्क करते हैं और उस रास्ते पे चलें। तो मैं पहले आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको आज बात कर रहा हूं इस मुबारक दिन पे, क्योंकि देखिए मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है। क्रिकेट स्टार, ग्लैमर, अपना मुल्क, हर किस्म की मैं जिंदगी पे सबसे पहले अभी आपने इसमें
दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आपने देखा। दुनिया की तारीख में 622 सब ये तारीख याद कर लें कि 622 मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना। 600 पर्दा कर देते हैं। उन 10 सालों के अंदर दुनिया की तारीख बदल जाती है। तो जो मैं अपने नौजवानों को आज, अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, सारों को जो मैं आपके ज़हन में आज एक चीज डालना चाहता हूं कि वो क्या आई उन लोगों में जो अभी आपने फिल्म में पहले देखा कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जहालत थी। 2 सुपर पावर्स, एक मगरिब में और एक मशरिक में, कोई भी हैसियत इन लोगों की नहीं थी। 10 सालों में ये कौम बदली और इन्होंने दुनिया की इमामत की, जो आपने बाद में देखा कि सारी दुनिया में छा गए। तो वो क्या चीज थी? वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इन लोगों को तब्दील किया, कैसे इनके कैरेक्टर बदल गए, कैसे लीडर्स बन गए सब। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना हमारे मुल्क में, जो वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, ना ही मुसलमान दुनिया पे इस पे काम हो रहा है। हमारे नौजवानों को, बच्चों को स्कूलों में पता चलना चाहिए कि उन्होंने कैसे इंसानों को तब्दील किया। कुरान में अल्लाह कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। वो कौम की हालत बदल गई क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदल लिया और लीडर्स बन गए। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको अपना, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से, जो मैंने मगरिब का पूरा मैं सिस्टम अंदर से देखा हुआ है, तालीम मैंने बाहर ली, उसके बाद सारी दुनिया फिरा क्रिकेट की वजह से, फिर सियासत, फिर अपना माशरा अंदर से देखा। तो मैं अब आपको अपने तौर पे बताऊंगा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे चेंज किया उनको। वो लोग फिर से, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने दुनिया की लीडरशिप संभाल ली। और आज मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान उधर ही खड़ा है। वो जो ना आपने पहले हालात देखे थे जहालत के, हम उसके बड़े करीब खड़े हैं। और हमने कैसे बदलना है अपने आप को। अगर हमने दुनिया में इज्जत से रहना है, और अगर जो बहुत बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान की, इलामा इकबाल, जो उनकी शायरी से उन्होंने गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, और उनकी शायरी की कुरान के अंदर, सारी शायरी कुरान के अंदर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर है। इसके ऊपर उन्होंने जगाने की कोशिश की हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और वो ख्वाब क्या थी कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो दुनिया में मिसाल बनेगा। और उनकी सारी नजर थी वो मदीना की रियासत, जिधर एक मिसाल बनी थी दुनिया में
जो मॉडल ने फिर उसके बाद सारी दुनिया पे वो फैल गए। 1000 साल तक मुसलमान दुनिया की सुप्रीम पावर रहे थे। तो वो मैं फिर भी मैं पूरी आजिज़ी से कहता हूं कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने तजर्बे से अब बात करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने कैसे इंसानों के कैरेक्टर बदले। उन्होंने किया क्या, उन्होंने सबसे पहले इंसानों को आजाद किया, ज़हनी तौर पे आजाद किया, अंदरूनी तौर पे आजाद किया। क्योंकि आजाद ज़हनी बड़े काम करते हैं। गुलाम ज़हन कभी कोई चीज इजाद नहीं करते। इनोवेशंस, इन्वेंशंस, नई इजाद जो चीजें होती हैं वो आजाद माइंड करते हैं, गुलाम नहीं कर सकता। एक गुलाम अच्छा गुलाम ही बनता है, कॉपी करता है। आजाद ज़हन बड़े काम करता है और उसकी वजह कई 100 साल तक सारे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे और वो उसकी बुनियाद रखी गई मदीना में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट एक इंसान की परवाज में है वो है खौफ। और मैं बार बार ये अपनी कौम को बताता रहता हूं कि जो खौफ का बुत है इसका तोड़ना बड़ा जरूरी है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो कुरान थी वो चलते फिरते कुरान थे। तो कुरान के अंदर जो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। खौफ का सबसे बड़ा खौफ मौत का। अल्लाह ने कहा जिंदगी मौत मेरे हाथ में। लोग अभी भी डरते हैं मौत से, जब पता है कि अल्लाह ने फैसला किया हुआ कि जब मैं चाहूंगा तो उससे पहले नहीं जाओगे। इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। लोग डरते हैं कि हम जलील हो जाएंगे। मैं जब से सियासत शुरू की लोग मुझे कहते आपको जलील कर देंगे वो। और फिर रिस्क, लोग अपनी नौकरियां नहीं छोड़ते, गलत काम करते हैं, गलत ऑर्डर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि जी मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा रिस्क ना चला जाए। अल्लाह ने कहा वो मेरे हाथ में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि वो कैसे चेंज आए मदीना के लोगों। वो आजाद हो गए, उनकी परवाज ऊपर जानी शुरू हो गई। मैं अपनी जिंदगी से आपको से अल्लाह ने, और जो उसका सबसे बड़ा तोहफा है ईमान का, जैसे जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, सीरत नबी को समझना शुरू किया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे बुत टूटते गए। ये नहीं कि मेरे में भी खौफ नहीं था, मेरे में भी खौफ था। मुझे भी ये होता था कि आएंगे लोग हंसेंगे आपके ऊपर। मुझे भी मैं तो बल्कि ज्यादा, मुझे बचपन में बहुत ही शर्म आता था, तकरीर ही नहीं होती थी लोगों के सामने। तो मुझे हमेशा खौफ होता था कि अच्छा जी लोग मजाक उड़ाएंगे। जैसे जैसे ईमान आता गया, मैंने नबी की सीरत समझता गया, आहिस्ता आहिस्ता ये बुत टूटते गए। पहला बुत जो मेरा टूटा वो ये कि ये जी आप जलील हो जाएंगे, आपको अगर पॉलिटिक्स में आएंगे आप जलील हो जाएंगे। ये जो बुत है ये मैं आप सबको आज बता रहा हूं। ये इसलिए कि हमारी ईमान कमजोर होता है। आज जितना मुझे, जब से मैं सियासत में आया हूं, जितना मुझे बुरा भला कहा गया, अगर मुझे जिल्लत का डर होता तो मैं बड़ी पहले छोड़ के चला गया होता। जिस तरह के मेरे ऊपर जाती अटैक्स, हर किस्म के मेरे ऊपर, जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है 20 सालों में, 26 सालों में, किसी और सियासतदान पे नहीं फेंकी।
फैमिली को नहीं छोड़ा, दीन किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। अब आपके सामने है, क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए? एक मिनट, मैं आपको आज सबको कह रहा हूं, पिछले 6 महीने में जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, मुझे सारी जिंदगी में कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। तो इसका तो मैं आपके सामने हूं, सुने सुने सुने, गौर से सुने। ये जलसा नहीं है, ये गौर से सुने, क्योंकि मैंने आज आपको अपनी जिंदगी से समझा रहा हूं कि अगर इंसान के हाथ में जिल्लत होती तो आज मैं बड़ा जलील हो चुका होता। मीडिया ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को पैसे ये देते हैं, लिफाफे देते, मुझे तो जलील हो जाना चाहिए था। मैं इसलिए अपनी कौम को कह रहा हूं कि कभी अपने ये जो बुत है कि जी मुझे कोई जलील कर देगा, ये याद रखिए अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है इज्जत और जिल्लत। दूसरी चीज मौत का डर। सबकी तरह मुझे भी मौत का डर था। मैं जब पॉलिटिक्स में आया उससे पहले मैंने के ऊपर काबू पाया, क्योंकि मेरा ईमान जैसे जैसे मजबूत होता गया, मेरा ये खौफ जाता गया। और मैं जब इस नतीजे पे आया कि जब अल्लाह का फैसला होगा उससे पहले मुझे कोई नहीं ले जा सकता, तब मैं सियासत में आया। मैं कैंसर हॉस्पिटल में 5 साल मेरा ऑफिस था। मैंने जब कैंसर हॉस्पिटल बनाया 5 साल मेरा ऑफिस था वहां। अपने सामने मैंने देखा 3 मेरे दोस्त वहां आए अच्छे भले चेकअप करवाने के लिए, और 6 महीने मेरे तीनों चले गए। तो ये जो हम समझते हैं कि हम अगर सेफ खेलेंगे तो शायद हम मौत से बच जाएंगे, या कि हम अगर अपने ईमान के मुताबिक चलेंगे तो शायद जल्दी मौत आ जाएगी, गलत फहमी में निकाल दें अपने ज़हन से। ये सबसे बड़ा खौफ है और ये इंसान को रोकता है बड़े कामों से। और तीसरी चीज ये रिस्क कि जी मेरी नौकरी चली जाएगी, पैसा किधर से आएगा। मेहनत इंसान करता है, फैसला अल्लाह करता है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये इंसान को आजाद कर देती है। और फिर जो बड़ा बुत है, मैं का बुत, जो इंसान अपने से बाहर नहीं निकलता, जो सबसे बड़ी जहाद है, जहाद अकबर, अपनी नफ्स के खिलाफ, अपनी मैं को कंट्रोल करने के लिए, ये बहुत बड़ा बुत है। अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए कितना बड़ा मुकाम रखा है। उसकी विजन, जो इंसान अपने लिए जिंदगी गुजारता है वो छोटा सा इंसान बन जाता है। जितना मर्जी अल्लाह उसको नवाज दे, जितने मर्जी पैसे दे दे, इल्म दे दे, जो अपनी जात के लिए जिंदगी गुजारता है वो आज तक दुनिया की तारीख में बड़ा इंसान नहीं बन सका। लोग किसको याद रखते हैं? हम बड़े हो रहे थे लाहौर में तो सारे गंगा राम को याद रखते थे। गंगा राम को क्यों? उसने अस्पताल बनाया था इंसानों के लिए। बड़े सगीर में बड़े बड़े जो सूफी आए, वली अल्लाह आए, आज भी उनके मज़ारों पे देखे लाखों लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इंसानों के लिए आए थे। वो सब आशिक रसूल थे। वो सारे, उनकी जिंदगी इंसानों के लिए थी और इंसान उनसे प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। सो ये जो बुत है, जब इंसान अपने से बाहर नहीं निकल सकता,
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. انہوں نے, اب میں کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے, ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا, یونیورسٹی وہاں گیا. اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی, انہوں نے سب سے پہلے, یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون, قانون کے سامنے سب ایک برابر, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا, کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لا دیکھا, کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہ جا رہا, ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرت نہیں ہے قانون توڑنے کی. ہم نے جب شروع میں دیکھا جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز, اس کو ٹریفک وارڈن نے روک کے فائن کر دیا, وہ سپیڈ کر رہا تھا. وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو کہ باہری اکثریت سے جیتا تھا, اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا کرونا کے دوران, اس نے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا, اس پہ نکال دیا. قانون کی بالادستی. اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا, یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی. یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہوا. انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں. جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے, اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جنگل کا قانون ہے, یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک پہ سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہے, یعنی انصاف ہے, جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا, وہ ہے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ میں 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے, یعنی مکمل انصاف ہے. وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ, وسائل ہے ہی نہیں. کم رول آف لا انڈیکس پہ کون ہے؟ نائجیریا 7%, وہ ہے تقریباً 100%, وہ ہے 7%. نائجیریا سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریا میں ہے. اسے تو بڑا امیر ہونا چاہیے وسائل کے, سوائے گائے اور پہاڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں. وہ سب سے خوشحال ہے. اور نائجیریا میں سب سے زیادہ غربت ہے, کیونکہ قانون ہی نہیں ہے, انصاف ہی نہیں ہے. وہاں بھی اوپر تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں, قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. ادھر بھی کوئی وہ ملک جدھر افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے, وہ غربت ہے, کیونکہ صرف 7% رول آف لا انڈیکس ہے. اور آپ کو افسوس ہوگا کہ تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے, پاکستان بھی 10% سے کم ہے. ہمارا یہ حال ہے, تو کیسے خوشحالی آئے گی؟ کیونکہ ہم نے وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے, نمبر 1 تھا انصاف. وہ ہم 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے, یعنی مکمل انصاف ہے. وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ, وسائل ہے ہی نہیں. کم رول آف لا انڈیکس پہ کون ہے؟ نائجیریا 7%, وہ ہے تقریباً 100%, وہ ہے 7%. نائجیریا سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریا میں ہے.
آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے ملک میں، جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے اور بچتے بھی جا رہے ہیں، اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ. آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں، وہ سارے بچ جائیں گے. اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے. یہ تباہی کا انہوں نے بتایا. اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، کو نہیں پکڑ سکتا، وہ غریب ہیں سارے وسائل کے باوجود. سو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا. نمبر 2، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ، کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے. آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں، سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے. اور دوسری چیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف